روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا. اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں. ایک طرف وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. افطار کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا واقعی ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا صرف ایک غلط فہمی ہے؟ آئے سنتے ہیں اہل حدیث کے علماء کرام عبدالرحمن عابد صاحب اور ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف. ہماری کوشش ہے کہ ہر مکتب فکر کے رائے اب تک دیانت داری سے پہنچائی جائے. اسی لیے اب ہم عبدالرحمن عابد صاحب اور ایڈوکیٹ فیصل صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں تاکہ معاملہ مکمل وضاحت کے ساتھ سامنے آئے. چلتے ہیں علماء کرام کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے ہمارے ساتھ اہل حدیث کے دو عالم موجود ہیں، جن میں ایک کا نام عبدالرحمن عابد ہے اور دوسرے کا نام ایڈوکیٹ فیصل صاحب ہے. ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انجیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انجیکشن ہوتا ہے جو بخار کو، درد کو، بیماری کو سن کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، جس کے اندر غذائیت اور طاقت نہیں ہوتی. یہ والا انجیکشن لگانے سے بندے کا روزہ ختم نہیں ہوتا. اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈے پانی سے بندہ شدید گرمیوں میں غسل کر لے تو اس کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، وہ جو تکلیف پیاس کی شدت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. بالکل وہی حیثیت اس انجیکشن کی ہے. اور دوسرا ہے طاقت کا انجیکشن، جس کے اندر غذائیت ہوتی ہے. اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے زمرے میں آ جاتا ہے. جو کھانا پینا بندے کو تقویت اور طاقت دیتا ہے وہی یہ انجیکشن تقویت دیتا ہے. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور یہ کھانے پینے کے حکم میں ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا انجیکشنز بیماریوں کی جو لوگ لیتے ہیں کیا یہ درست ہوں گے روزے کی حالت میں لینا؟ تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں آپ انجیکشنز لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ انجیکشن دوا کا ہو، غذائیات یا طاقت کا نہ ہو. ٹھیک ہے، غذائیات اور طاقت مطلب کھانے پینے کا متبادل نہ ہو اور طاقت اسٹرینتھ نہ دیتا ہو. یہ دو انجیکشن، دو قسم کے چھوڑ کر عام انجیکشن آپ لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ انجیکشن کے تعلق سے ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوائیں جو علاج کی وہ پی جا سکتی ہے، جو دوائیں طاقت کی وہ نہیں پی جا سکتی. نہیں، دوائیں حلق سے تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی روزے کی حالت. اہل حدیث کے مکتب فکر کے علماء کی گفتگو آپ سن چکے ہیں. اب ہم دیوبند مکتب فکر کی طرف سے آتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں. آئیں ان کا موقف جانتے ہیں. سنتے ہیں انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ دیوبند مکتب فکر کے اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آئے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرماتے ہیں. کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے. کھانے پینے سے منع کیا ہے، اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے اب جو کہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا ہے. ہر عالم کا موقف علم میں اضافہ کرتا ہے. اب ہم مولانا مفتی مکی صاحب کی رائے بھی شامل کرتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے. اب سوال یہ ہے کہ مولانا مفتی مکی صاحب اس مسئلے پر کیا کہتے ہیں. رک جائے کہ وہ کہ مولانا مفتی مکی صاحب بھی بہت اچھے انداز میں اپنی رائے دیتے ہیں. سنتے ہیں. ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے. اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حاضر نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا دیں. ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں، انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. اب جو کہ آپ نے مولانا مکی صاحب کا بھی موقف دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے،
तो अब हम देवबंद उलमाए कराम में से एक और आलिम दीन मौलाना इलियास साहब का मौक़िफ़ भी सुनते हैं। देखते हैं कि रोज़े के दौरान इंजेक्शन या ड्रिप लगाने से रोज़ा टूटता है या नहीं। इनका मौक़िफ़ सुनते हैं, आए सुनिए। इंजेक्शन लगवाना, रोजे में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, रोज़ा नहीं टूटेगा। ये इंजेक्शन पट्टे में लगवाएं तब भी जायज़ है, और ये इंजेक्शन अगर रग वेन के अंदर लगाएं तब भी जायज़ है। किसी हालत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, ताकत के लिए इंजेक्शन, इंजेक्शन खा किसी मर्ज के लिए हो या ताकत के लिए हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, महज इसलिए इंजेक्शन लगवाना कि कमज़ोरी महसूस ना हो, रोज़े का एहसास ना हो, भूख महसूस ना हो, ये मकरूह है। कराहत अलग चीज़ है, लेकिन इससे रोज़ा टूटेगा नहीं। नंबर 6, ड्रिप, मरीज रोज़े की हालत में ड्रिप लगवा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन भी डाले जा सकते हैं, लेकिन बिला ज़रूरत सिर्फ कमज़ोरी को दूर करने की ड्रिप लगवाते रहना ये मकरूह है, ये मुनासिब नहीं। लेकिन ड्रिप लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अब जो कि आपने अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के उलमा का मौक़िफ़ सुन लिया है, ये थे मौलाना इलियास जिसे आप सुन रहे थे। तो हम अब बरेलवी मकतबा फ़िक्र की तरफ आते हैं। हमारे साथ मुफ्ती अकमल कादरी साहब हैं और इनकी राय भी देखते हैं कि वो रोज़े के दौरान इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने के बारे में क्या फरमाते हैं। आइए सुनते हैं। इंजेक्शन और ड्रिप के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ ये कहते हैं कि चूँकि इनसे तवानाई हासिल होती है, इससे जिस्म की इस्लाह होती है, ताकत का हो तो तवानाई आएगी, और दवा के तौर पर हो तो जिस्म की इस्लाह करेगा, और यही चीज़ खाना वगैरह भी करता है। इसीलिए शरीयत ने खाने पीने को मना किया ताकि तवानाई हासिल ना हो, कमज़ोरी महसूस हो। इसका मतलब है वो कहते हैं कि असल मुंह के ज़रिए किसी शय का अंदर जाना नहीं, बल्कि उसके अंदर पहुँचकर ताकत और तवानाई का सबब बनना, इस्लाह का सबब बनना, ये असल है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर इंजेक्शन या ड्रिप लगवाई तो चूँकि इस्लाह होगी, ताकत हासिल होगी, लिहाजा रोज़ा चला जाएगा। और दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हम मिजाज शरअ देखते हैं वो ये कि इन्हीं ज़राए से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा टूटने के मामलात ज़िक्र फरमाए, लिहाजा ये इंजेक्शन या ड्रिप जो है वो रग में लगेगी, मसामों के ज़रिए चीज़ अंदर जाएगी, लिहाजा रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अब हम जो फतवा देते हैं, मैं अपनी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत से और भी उलमा हैं जो इसी तरह करते हैं कि जानिबैन की रियायत करते हैं। दोनों तरह के उलमा के कौल की रियायत करते हुए हम यूँ कहते हैं कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है, कोई कमज़ोर ऐसा है कि इंजेक्शन या ड्रिप के बगैर रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता, तो बेहतर है कि वो रोज़ा रखे और ड्रिप वगैरह लगाकर रोज़ा पूरा कर ले, कि असल तो इबादत की अदायगी है और वो हो रही है, और मसला मुख्तलफ ही है, तो उससे फ़ायदा उठा ले। और जो सेहतमंद है, अगर वो चाहता है कि मैं ज़रा ड्रिप करवा लूँ या वो इंजेक्शन लगा लूँ ताकि बिल्कुल सुकून से गुजरे, मुझे तकलीफ ना आए, इसको हम मना करेंगे कि आप ऐसा ना करें। जी दोस्तों, आपने मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की राय भी जानी, और आए सुनते हैं एक और आलम दीन की गुफ्तगू। मौलाना मुफ्ती अहसन साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, इनका भी मौक़िफ़ जानते हैं, ये इसके बारे में क्या कहते हैं। एक तो रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है, यानी दारुल अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद जम गफीर जो है वो इस बात का कायल है कि अगर इंजेक्शन लगाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अब इंजेक्शन लगवाना जो है वो कैसा है, तो ये कैफियत देख लीजिए। सही। अब किसी को शदीद दर्द है कि जिसकी वजह से उसको इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, तो ठीक है, वो दर्द के लिए इंजेक्शन लगा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो कमज़ोरी महसूस कर रहा है अपने जिस्म के अंदर रोज़े की वजह से, अब वो सिर्फ इसलिए ताकत के लिए इंजेक्शन लगवाता है कि मैं ताकत लगा के अच्छी तरीके से जो है, जैसे एक खाता पीता शख्स होता है, उस अंदाज में रोज़ा गुजारना शुरू कर दूं, तो फिर इस तरह लगाना ये मुनासिब नहीं है। तो इंजेक्शन लगाने से बाहर सूरत रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब ज़रूरत हो, इसके अलावा चारा ना हो, तो फिर उसी सूरत में बंदा जो है वो इंजेक्शन लगवाए, वरना इंजेक्शन लगवाने से भी बंदा गुनाह। ये थे हमारे मदनी भाई मुफ्ती मोहम्मद अहसन साहब, इसने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आए अगले उलमाए कराम की तरफ चलते हैं, अगली वीडियो की तरफ। ये है इंजीनियर हालत में मोहम्मद अली इंजेक्शन मिर्ज़ा साहब। लगवाना, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो या वेनस हो, तो इसमें कोई हम तो दोनों को गलत समझते हैं, क्योंकि सही बुखारी में 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में इब्ने अब्बास का कौल इमाम बुखारी लेके हैं कि रोजा जिस्म में चीज दाखिल करने से टूट जाएगा, निकालने से नहीं टूटेगा। अब वो दाखिल कर रहे हैं, आप चाहे इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, उलमा का इख्तिलाफ है, मुझे पता है। मैं तो उस चीज की जाऊंगा जो मुझे समझ में भी आती है। गुलाम रसूल सईदी साहब पहले कायल थे इंजेक्शन से रोजा ना टूटने के,
पूरी मुस्लिम शरीफ लिखते लिखते जब आखिरी जिल्द में पहुंचे ना तो उन्होंने रुजू कर लिया और फिर उन्होंने मुस्लिम शरीफ का एक ज़मीमा लिखा, शरह सही मुस्लिम का, जो आखिरी जिल्द के साथ है, जिसमें उन्होंने इंजेक्शन से रोजा टूटने के दलाइल दिए हैं और यकीन करें वो सही साइंटिस्ट वाले दलाइल हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, आप कहते हो कि मस्कुलर करें तो नहीं टूटता और वेन में करें तो टूट जाता है, डायरेक्ट मैदे में टपकाएं तो टूटता है। वो कहते हैं अल्टीमेटली जो आप खाना भी करते हैं वो भी मैदे से होके आपके मसल्स तक ही पहुंचता है ना, वो कान ऐतू पढ़ो या ऐतू पढ़ो, अल्टीमेटली तो ही रिजल्ट है ना। तो मरीज को वैसे ही रोजा माफ है, छोड़ दे, आपने जरूर रखवाना है। शुगर के मरीज होते हैं, वो कहते हैं यार ये इधर तक बात चली गई, वो कहते हैं इंसुलिन लगा ले रोजा नहीं टूटता, क्योंकि शुगर का मरीज है। तो शुगर के मरीज पे तो रोजा फर्ज ही नहीं है भाई, वो मरीज है, और अगर वो बाद में शुगर तो उसकी ठीक नहीं होनी है, नहीं रख सकता तो फिदिया दे दे। लेकिन आप शरीयत को टेलर मेड तो ना करें। इस तरह कई सांस के मरीज हैं, इनहेलर का यूज करते हैं, उसमें कुछ बाद लोग गुंजाइश निकालते हैं, लेकिन इनहेलर की गुंजाइश के साथ सिगरेट की गुंजाइश भी फिर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं, अगर तकवा के हैसियत से सोच के इंसान रख ले तो तकवे के हाँ, सेंस फिर में। तकवे के साथ फिर ये है कि वो साथ हर रोजे का एक फिदिया भी देता रहे, अच्छा, कि अगर वो रोजा काउंट ना हुआ तो फिदिया तो पीछे आपकी बुनियाद पे खड़ा होगा ना, ठीक। तो करे, ठीक है, इंसुलिन भी लगाए, सारा कुछ करे, रोजा रखता रहे, अपनी तसल्ली भी करता रहे, फिदिया भी देता। नाजरीन कराम, आपने देखा है मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा ने रोज़े में इंजेक्शन और ड्रिप लगाने के बारे में क्या मौक़िफ़ दिया। अहले हदीस देवबंद और बरेलवी हर आलिम ने अपनी दलाइल के साथ ये बात वाज़ेह की कि इलाज और ज़रूरी है, इंजेक्शन लगवाना जायज़ है और रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता बला ज़रूरत कमज़ोरी दूर करने के लिए मुसलसल इंजेक्शन लगवाना या ड्रब लगवाना मकरूह है। यानी मसला सिर्फ कानूनी या फ़िक़ही या बहस का नहीं है, बल्कि हमारे रोज़े के रूह और एहतियात का भी मामला है। इख्तिलाफ अगर इल्म और दलील के साथ हो तो वो रहमत